हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा। सो सो लेट्स लेट्स बिगिन बिगिन। आवर डे। Yoo-hoo! So, my name is Smruti. And my name is Gaurav. Welcome to our journey, Smruti with. GK. Today I want to share an incredible journey with you all, that how I got to study free in Vancouver, in such an expensive city. So start by introducing yourself. What were you doing in India and what made you choose Vancouver for your studies? So I am a dentist in India and I chose to do masters in Vancouver, Canada. मुझे ऐसा था कि मुझे मास्टर्स करना है कहीं बाहर से, अब्रॉड से। मैंने अंडरग्रेड इंडिया में कर लिया था, तो मुझे एक्सप्लोर करना था एंड आई ऑल्सो थॉट कि बाहर से मास्टर्स करना वुड बी वैल्यूएबल. So after exploring a lot of options, I thought I chose Vancouver to pursue my master's in healthcare administration. Since I did a healthcare, since I'm from healthcare background, I wanted to go for healthcare only. And this master's in healthcare administration is kind of a bridge course for me, which will get me to my dental license, as I also want to get my dental license in Canada. So this master's got me 2 years of my study permit, got me 2 years of study visa, and 3 years of postgraduate work permit. So now tell us, how was your experience when you first landed in Canada? How was your first few months as a new student? When I landed in Vancouver, I loved the city actually. बहुत ही सुंदर है and livable भी है, but also it is one of the most expensive cities. One more thing, initially थोड़ी struggles है as a student. पहले जैसे हमने घर रेंट पर लिया, फिर furnitures लिए, फिर गाड़ी ली. पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना भी होता है, विच इज़ लाइक नॉट वेरी ईजी आई वुड से. यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ फूड, घर के काम, साफ़ सफाई. मुझे थोड़ी OCD भी है साफ़ सफाई को लेके. एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्ट्रगल्स बेसिकली फाइनेंसेस मैनेज करने की थी. I also took a loan for some amount क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंसेस पूरे नहीं हो रहे थे. मुझे GIC भी पे करना था एंड 1 ईयर की फ़ीस पे करनी थी फॉर माई मास्टर्स, एंड देन फ्लाइट टिकट्स भी हैं एंड मिसलेनियस थोड़े बहुत और खर्चे होते हैं फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो जो मुझे लोन मिला था कुछ अमाउंट, वो मैं आपको बताऊंगी उसका भी कैसे मैंने जुगाड़ करा है इन आफ्टर कमिंग टू कैनेडा. गाइस, थोड़े से फाइनेंसेस के इशू थे, बट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था सेटल इन होने के लिए. मैं बहुत जल्दी सेटल इन हो गई थी. सो टेलिंग यू अबाउट माय जॉब एक्सपीरियंसेस. सो फर्स्ट जॉब आई गॉट इट इन रॉजर्स अरीना, दैट्स इन डाउनटाउन वैंकूवर. सो आई स्टार्टेड एज कस्टमर सर्विस असिस्टेंट. तो वो मैंने 2 मंथ्स के लिए करा वो जॉब. साइमल्टेनियसली मैं और गौरव दोनों सेटल इन हो रहे थे, तो इट टुक अस सम टाइम to settle in, but with Gaurav's support and with each other's support for each other, we managed it very well. So coming on to the job topic, I was searching simultaneously for different jobs. So you know what? I got a job in my university, and that job posting was for graduate assistant. That's also called research assistant. So for this job, I went through interviews and then I finally got the job. So this job has some job responsibilities, that is like compiling academic records and then administrative work, and I was okay with it. मुझे था कि चलो very nice. Then मैंने इनकी कि मुझे क्या दे रहे, सैलरी क्या मिल रही है, तो मैंने देखा and you know what, guess, मेरी जो सैलरी थी वो थी कि दे आर गना कवर, माई यूनिवर्सिटी गना कवर 70% ऑफ माई फीस. एंड लेट मी टेल यू, माई यूनिवर्सिटी फीस इज़ इन USD, नॉट इन Canadian dollar, because my university is an American university and they have a campus in Vancouver. I came Vancouver, but I have to pay fees in USD. So मैंने फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो दे ही दी थी, एंड बाकी जो फीस थे मेरे, जैसे एवरी ओके, आई गेट री हायर्ड इन एवरी सेमेस्टर. ठीक है, तो 70% of the fees they are gonna cover every semester. So they rehire me on the basis of my GPA, which I maintained like well actually 3.8 के around out of 4. वाह, बहुत इंटेलिजेंट है. बस. तो मेरी GPA भी अच्छी थी, प्लस जो मेरे हेड थे, जो मेरे बॉस थे यूनिवर्सिटी में, ही ऑल्सो लाइक्स मी लाइक फॉर वर्क एंड एवरीथिंग, तो ही एक्चुअली ट्रस्ट मी.
तो मेरी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड बन गई. देन आई गेट री हायर्ड अगेन एंड अगेन. तो मैं 3 सेमेस्टर से वहाँ पे काम कर रही हूँ. तो एज यू नो मेरे 3 सेमेस्टर की 70% फीस कवर्ड है. सो ठीक है, तेरी 70% फीस तो तेरी इस जॉब से एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट कवर हो रही है, बट बाकी के 30% तूने कैसे कवर अप किया, क्योंकि तूने तो सबको बोला है कि यू स्टडी फॉर फ्री इन वैंकूवर. So for managing 30%, what I did is I shuffled my course, and actually per semester I was allowed 9 credits and they were paying me 6 credits. तो मैंने एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा करा ताकि जो मेरी 30% है वो मेरी फीस का मतलब वो मेरी कवर हो जाए एंड वो मुझे मिल जाएगी. तो वो जो 30% है दे विल रीइंबर्स मी एट द एंड ऑफ माय सेमेस्टर. तो Okay, ऐसे so you took one extra semester या so that you can cover rest actually of you the can say fees. I studied. I took summer semester and also like summer semester यहाँ पे ऑप्शनल होती है, तो मैंने समर सेमेस्टर ले लिया कि वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई. एंड देन एक्स्ट्रा जो सेमेस्टर है उसमें भी मुझे पैसे मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी से. तो दैट्स हाउ माई क्रेडिट्स all the credits gonna get covered and my fees gonna get reimbursed to me. तो मुझे ऐसे कोई फीस ही नहीं पड़ी यूनिवर्सिटी की. तो मेरी लोन भी क्लियर है एंड मेरी फीस भी कवर्ड है. वाह. ओके तो मैं आपको अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी. एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल, आई मीन थोड़े बहुत लोग, 3-4 लोग, उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ डू यू मैनेज योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग. आप कैसे इंजॉय कर लेते हो, इतना क्या करते हो आप. तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आई ऑल्सो वर्क इन क्लिनिक. मेरी फ़ीस के लिए मैं ग्रेजुएट असिस्टेंट हूँ, बट फॉर लिविंग एंड फॉर माई पर्सनल खर्चे आई वर्क इन क्लिनिक सिंस आई एम अ डेंटिस्ट फ्रॉम इंडिया. सो आई गेट जॉब्स इन डेंटल क्लिनिक एंड आई स्टार्टेड एज फ्रंट डेस्क. ठीक है, तो मेरी जो कस्टमर सर्विस की एक्सपीरियंस थी वो मेरी फ्रंट डेस्क में काम आ गई. एंड देन आई गॉट प्रमोटेड टू चेयर साइड असिस्टेंट. तो मैंने थोड़ा टाइम चेयर साइड असिस्टेंट का भी काम करा. दैन फिर मैंने क्लिनिक्स भी शफल करे, एक्चुअली चेंज करे मैंने क्लिनिक्स बेस्ड ऑन माई अवेलेबिलिटीज़, बेस्ड ऑन द लोकेशन. तो फिर मैंने क्लिनिक्स भी चेंज करे एंड अभी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ they are paying me actually well, which is way more than average pay that the students are getting paid in Canada. तो बेसिक पे से मेरी पे काफ़ी अच्छी है. तो So you worked smartly here. या तो मेरी जो बाकी चीज़ें हैं इट इज़ गेटिंग मैनेज्ड. एक और चीज़ बताती हूँ, जब मैं कनाडा आई थी ना तो आई वॉज एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब. आई सजेस्ट यू टू सर्च एक्टिवली ओवर एवरी प्लेटफॉर्म दैट यू आर कमिंग अक्रॉस. तो मैंने यहाँ पे थोड़े स्टार्टअप्स के लिए भी सर्च करा था कि स्टार्टअप्स आर मोर लाइकली टू हायर यू इफ़ यू हैव टैलेंट एंड इफ़ यू हैव गुड स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना. सो आई ऑल्सो सर्च फॉर स्टार्टअप्स. तो जो मैंने पहले सर्च करा था दे हायर्ड मी एक्चुअली नाउ एज अ लाइक improving their sales in dental clinics. So I connect them with clinics, dental clinics, and they pay me commission for it. So it's like a side job for me. So it's a commission based job. तो ऐसे आप देखोगे तो मेरी 3 जॉब है इस टाइम पे and they are pretty well. I am happy with it. So you should also work smartly and try finding things very smartly because competition बहुत है and be very smart. सो गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि हम वीडियो कहाँ पे बना रहे हैं, तो हम अपने घर के बहुत पास में हैं और आप देख सकते हो फॉल का सीज़न चल ही रहा है. हर तरफ अलग अलग कलर्स के पत्ते, येलो, ऑरेंज, रेड. ये हमारी नेबरहुड है गाइस, व्हिच इज रियली ब्यूटीफुल. हमारा घर पास में ही था, हमने वहाँ से शुरू करी थी और हम वॉक कर करके आपको अपना नेबरहुड भी साथ में दिखा रहे हैं. दिस एरिया इज बर्नबी, नॉर्थ बर्नबी, व्हिच इज ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन. सो लेट्स गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड शो यू द व्यूज ऑफ वैंकूवर. और इससे आगे और बात करते हैं. सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है वैसे हमारे घर से बर्नबी माउंटेन, जो कि काफ़ी प्यारी जगह है. एंड एक और चीज़ है कि गौरव ही स्टार्टेड एज रिसर्च असिस्टेंट एक्चुअली इन हिज यूनिवर्सिटी. सो ही टोल्ड मी टू सर्च अ जॉब इन माई यूनिवर्सिटी. आई वॉज लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई जॉब्स नहीं है. ही टोल्ड नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, पक्का कुछ ना कोई जॉब होएगा, यू सर्च फॉर इट. देन आई ब्राउज
the job options in my university, and then I came to know कि okay, this kind of job also exists in my university. तो आप भी सर्च करें, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आए हैं कनाडा, आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे जॉब्स होंगे. You just need to act smart. Gaurav, he actually nourishes my self-confidence and my potential. Yeah, you do that. And you make me feel कि you can do it. He literally, मैं सेल्फ डाउट कर रही होती हूँ कि क्या पता, लेट इट बी, पता नहीं होएगा या नहीं, मैं अचीव कर सकती हूँ. ही इज़ लाइक नो, यू कैन डू इट एंड यू शुड ट्राई फॉर इट. तो इसकी बहुत सपोर्ट है इस चीज़ में मुझे मोटिवेट करने के लिए. एंड ही ब्रिंग्स दैट वर्थ इन मी कि यू कैन डू इट. और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई कैन से एट टाइम्स कि छठों पर जो होएगी देखी जाएगी. तो मैं ये बोलती हूँ कभी कभी, यार मैं ऐसे लेट इट बी, ओके गौरव है टू बैकअप फॉर मी. हम पहुंच गए हैं अब बर्नबी माउंटेन पे. ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स है बिकॉज़ यहाँ से पूरा वैंकूवर दिखता है हमें. And I would also like to thank my family and Gaurav's family who have supported us in every situation and poured their blessings. They have always given a thumbs up to everything that we plan. It's like वो हमारे साथ हमेशा हैं. We love you and miss you. So that's how I managed to study free in Vancouver. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, I hope my journey inspires you to pursue your dreams. If you are also planning to come to Canada, I would say Canada is rewarding, but you will have to put a lot of efforts and stay determined to achieve your goal what you are here for. सबसे ज़्यादा important चीज़, stay away from negativity. Stay positive and enjoy what Canada has to offer. और गाइस अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो हमें वीडियो को यही ख़त्म करना पड़ेगा. मुझे थोड़ा जुकाम फीलिंग भी आ रहा है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल button. And in our next video, we are gonna show you how is the journey for Gaurav in Vancouver. Isn't it, Gaurav? Stay tuned. Stay tuned. Bye bye. Bye.